Good morning, class. Today we are going to talk about some plant fibers. Plant fibers are also known as natural fibers. Okay, mainly there are two categories of fibers, such as natural fibers and synthetic fibers. In natural fibers, mostly those fibers comes which are made from either plants or animals. Okay, such as cotton, wool, or jute. Okay, and on the other hand, synthetic fibers are those fibers which are made from chemical substances such as acrylic, rayon, nylon, linen, etc. So, some of the plant fibers are cotton. So, we are going to talk about cotton. Have you ever made wicks of oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. बच्चों, आपने देखा होगा जब भी हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो मोस्टली हम लोग ऑयल लैंप्स जलाते हैं और जिसकी जो बत्ती होती है जो हम जलाते हैं वो कॉटन से ही बनती है। ठीक है, तो कॉटन हमारी लाइफ में बहुत सी जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि वो हमारे बेड के मैट्रेसेस में यूज़ होता है, पिलोज़ में यूज़ होता है, कपड़े बनते हैं, काफ़ी चीज़ें में यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक इन एट इट्स एजेस. What do you observe? The small, thin strands that you see are made up of cotton fibers. So this we also did in the activity number 2 and 3. What we have to do is we have to take a yarn and split the yarn into a thread by scratching on its ends, and we will see the thin fibers from which the yarn is made. Okay, so which depicts that a single yarn is also made from thin fibers. Okay, so in the similar way the cotton fibers are combined to make a cotton wool. Okay, now where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some of our country state where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with the cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days, machines are also available for ginning. तो बच्चों, कॉटन एक ऐसा क्रॉप है, कॉटन एक ऐसा फार्मिंग क्रॉप है जिसको ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होता है। तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है? वो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिकॉज दीज स्टेट्स हैव black soil. Okay, and black soil is mandatory for the production of copper because it provides the favorable condition to the cotton crop. Okay, तो बच्चों होता क्या है, जब हम लोग कॉटन का क्रॉप लगाते हैं, वो प्लांट बनता है, तो जो कॉटन बॉल्स जो हमें मिलते हैं कॉटन प्लांट से, वो उसके फ्लावर एरिया से, फ्रूट एरिया से हम लोगों को मिलते हैं। वो बॉल्स के शेप में, जैसे आप इमेज 3.6 में देख सकते हैं, ये कॉटन फील्ड का एक इमेज हमारे सामने है। ओके, आपको ये देखने में आ रहा होगा कि ये कॉटन बॉल्स फ्रूट में से लगे हुए हैं। ठीक है,
तो इनका जो फ्रूट होता है जब वो पूरा पक जाता है तो वो बस्ट आउट होता है और उसमें से ये कॉटन बॉल्स निकलते हैं। जब ये पूरा कॉटन क्रॉप जो फील्ड है कॉटन का, वो पूरा सारे प्लांट्स का जो कॉटन है वो पक जाता है अच्छे से, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं फिगर नंबर 3.6 में। ओके, इट इज़ अ फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। इट लुक्स लाइक स्नो लैंड। ओके, ऐसा लगता है जैसे पूरे मैदान में बर्फ़ गिरी हुई है। ठीक है, क्योंकि कॉटन बॉल्स कैसे वाइट होते हैं और बर्फ़ भी वाइट होती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जो लैंड है उसमें स्नोफॉल हुआ है। ठीक है, अब बच्चों जब ये जो फ्रूट है, कॉटन का फ्रूट है, ये पक जाते हैं और इनके ऊपर कॉटन बॉल्स आ जाते हैं, तो इनको जो प्लकिंग का प्रोसेस है वो भी हाथों के द्वारा किया जाता है ताकि इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना लग सके। ठीक है, और आगे जो साफ़ करने का प्रोसेस है उसमें भी इनको ज़्यादा दिक्कत ना आ सके, तो इसकी वजह से ये लेबर्स के द्वारा हाथ से तोड़े जाते हैं। ठीक है, हाथ से तोड़ के वो कलेक्ट किए जाते हैं। एंड देन कम्स द लास्ट प्रोसेस विच इज़ गिनिंग, in which the laborers separate fibers from the seeds of cotton fruit. Okay, so the fibers which are separated from the seeds of cotton crop by combing is called as ginning. Okay, जब लास्ट प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये कॉटन यूज़ के लिए तैयार होता है और उसको फर्दर प्रोसेस में जाके आगे उसके फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है और जो भी चीज़ उससे बनानी है, चाहे को कुशन हो, क्लॉथ हो, वो सब आगे जाके बनते हैं। ठीक है, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द गिनिंग। ओके, पहले जो होता था जो सीड्स को कॉटन बॉल से सेपरेट करने का जो काम होता था वो हाथ से किया जाता था, बट इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ डन बाय मशीन्स। ओके, so this was about cotton. Now we are going to learn about jute. Okay, so jute fiber is obtained from the stem of jute plant. This one is the stem. Okay, this is the stem. So jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in Bihar, West Bengal, Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stem of the harvested plants are immersed in the water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. तो बच्चों जो हमारा जूट का प्लांट है जिससे हमारी जूट्स फाइबर ऑब्टेन होती हैं, तो ये कैसे ऑब्टेन होती हैं इसका प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जूट प्लांट जूट की खेती है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में होती है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार। ठीक है, ये सारे जो स्टेट्स हैं इसमें जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अब जूट की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जूट एक ऐसा क्रॉप है जिसको ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी भी चाहिए होता है और मॉइस्चर भी चाहिए होता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं मोस्टली वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनको जो सफिशेंट अमाउंट में वाटर सप्लाई चाहिए होता है वो इनको मिलता है। ठीक है, और जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। मतलब जब इसमें फूल लगने वाले होते हैं उस टाइम पे इसको काटा जाता है। और जो इसके स्टेम्स हैं, ठीक है, ये इसका स्टेम्स हैं जो वो पानी में डाल के इनको सड़ाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें से फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब इन स्टेम्स को काफ़ी टाइम के लिए पानी में डाला जाता है, काफ़ी दिन के लिए पानी में डाला जाता है और ये सड़ने लग जाते हैं, उसके बाद इसमें से फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है और उनसे फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले उसको
यान में कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों, किसी भी फाइबर्स से कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ यान? यान इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मल्टीपल सेट्स ऑफ फाइबर्स, ओके, एंड फैब्रिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी यान्स, ओके। तो फाइबर्स को कंबाइन करके यान बन रहा है और यान्स को कंबाइन करके फैब्रिक बन रहा है। हमें इस बात को याद रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड very well about cotton and jute plant. So if you have any doubt, you can ask me in Google Meet session. Thank you.